So, well, dear students, good evening. Today, I will take some important numericals problems of the concerned lectures. But before going to the problem, I want to first discuss about the compound war, right? So हमारा लेक्चर जो आज स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा कि कंपाउंड वार क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड वार, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट आई विल गिव यू फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स. सो टुडे माय लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो I want that everybody should concentrate and should try to understand that what I am delivering here today. So, my lecture starts from first, I will give you the compound war. So, as the name suggests, what is the compound war? Compound war means that the two bars of the different material, when they are connected parallel to each other. Compound war क्या है? दो bars of different material के लिए and connect these bars, you can say, together in the parallel direction. So that is called the compound war. Just say, suppose this is your bar, this is your one bar, right? And I will take another bar also, and suppose this is your second, this is your second bar, right? And these two bars are connected. तो जहां से ये दो बार क्या है, connected है, these two bars are connected like this. You can say these two bars are connected like this. Here also this bar is connected. So this is your compound bar. You can say that one bar is made of steel. Suppose if this bar is steel, this material is steel, and this is aluminium or copper or any other material. When two bars are connected in parallel, you can say, yes. So, you can say its definition is when two bars of the different materials, when the two bars of the different materials are connected in parallel, so that is the compound bar. तो क्या होगा, वो आपकी कंपाउंड बार होगी, टाइप. So you can say this is the definition of the compound bar is when the two bars of the different materials are connected in parallel, so that is the compound bar. अब देखिए, I have taken the compound bar here, and this bar is fixed at this end and fixed at this end. These are connected by like this, you can say, support here on the both ends. Now, you understand. अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपके पास कंपाउंड बार है, so then what is there? देखिए जब कंपाउंड बार है
So suppose if I will take the section here, right, and cut the bar here from here, you can say if I will cut the bar from here, तो आपकी जो बार होगी वो क्या बन जाएगी? आपकी बार इज लाइक दिस, so your bar is like this. तो बार क्या होगी आपकी? ये आपकी बार थी, right? So the bar is like this now. You can say this is and this is your second bar of the aluminium, right? So this is your second bar of the aluminium. So bar is like this, right? जहां से आपने क्या किया, इस कंपाउंड वार को काटा आपने, राइट? तो क्या होगा, when you will apply the load on the bar, जब आप वार के ऊपर क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, suppose say you have applied the load on the bar 200 kilonewton, right? आपने बार के ऊपर कितना लोड अप्लाई किया, टेंशन लोड, you have applied tension load on the bar 200 kilonewton, right? तो जहां से बार को आपने काटा तो क्या होगा, ये आपका कितना है 200 kilonewton, एंड देन जहां पे तो आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं, दिस इज PS and this is your PA, right? PS and PA, right? So as you know that this bar is in equilibrium, right? So the bar is in equilibrium. So when you put this, so internal force in the steel, that is denoted by PS, and internal force in the aluminium, that is denoted by PAL, right? That is denoted by PAL, right? तो जहां से क्या करेंगे, जब आप इसको बार को कट करेंगे तो इंटरनल फोर्स क्रिएट होंगी, जहां पे इस एंड के ऊपर क्या होगा, PS फॉर स्टील एंड PAL फॉर एल्यूमिनियम. सो यू नो दिस बार इज अंडर इक्विलिब्रियम. तो जहां पे हमें जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मिलेगी वो कौन सी इक्वेशन होगी, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0. There is only one equilibrium equation because all the forces are in the horizontal direction. So we will not apply the sigma fy equal to 0 and sigma m equal to 0. So there is sigma fx equal to 0. तो sigma fx equal to 0 क्या होगा, 200 is equal to PS plus PAL, right? So this is your equilibrium equation. Just see here, this is equilibrium equation. You can say this is equation number 1. What from here you have seen that there are two unknowns. How many unknowns are there? There are two unknowns, PS and PAL. But we have only one equilibrium equation because sigma Fy we will not take, sigma m we will not take. We are only having one equilibrium equation and that is 200. This is equal to PS plus PAL. But हमारे पास अननोन कितने हैं, हमारे पास दो अननोन हैं और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कितनी है, एक है. तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें दो इक्वेशंस चाहिए. Suppose if I say that calculate the value of, or you can say calculate the value of stress in the steel. So for calculating the value of stress in the steel, you have to calculate the value of PS, that is internal force in the steel. Or if there is a question, and in the question if one say that calculate the value of aluminium, so you have to calculate the value of PAL, right? Internal force in aluminium. So it means that there are two unknowns.
what? There is only one equation. So in that case, क्या होगा? जब आपके पास number of unknowns are more than that of the equilibrium equation, जब आपके पास हमारे पास जो स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी उससे ज्यादा आपके नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, सो दैट यू कैन से दैट इज कॉल्ड द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार. तो ये क्या कंडीशन हो गई यहां पे? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो गई, बिकॉज हियर वी आर हैविंग द अननोन्स मोर एंड द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज लेस. In that case, you can say that condition is statically indeterminate. This condition is for the statically indeterminate. You understand that? तो जो पीछे मेरा लेक्चर था, मैंने आपको बताया था कि when the condition arise like this, you can say when there is a statically indeterminate condition, what we do? We just take the compatibility equation. तो सेकंड हम क्या चूज करेंगे? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लेंगे, राइट? सो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी? चेंज इन लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील. इन दिस केस तो हम क्या लेते हैं? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या लेंगे? चेंज इन लेंथ. सो एज यू नो दैट दिस इज deformed, this is fixed on both sides. Suppose if I say the length of this is L, so अगर L इसकी लेंथ होगी तो एल्यूमिनियम की लेंथ भी L होगी, और जितना ये डिफॉर्म करेगा, क्योंकि इट इज कंस्ट्रेंट हियर, इट इज कंस्ट्रेंट ऑन बोथ द एंड्स, तो जितनी डिफॉर्मेशन आपकी स्टील में होगी उतनी ही डिफॉर्मेशन आपकी एल्यूमिनियम में होगी. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो द कंडीशन क्या होगी यहां पे? दैट इज डिफॉर्मेशन मीन्स डेल्टा एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल ए एल. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मैंने कैसे लिया? डेल्टा एल एस दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए एल, बिकॉज डेल्टा एल एस क्या होगा? डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ इन द स्टील, and delta AL, this is the change in length in the aluminium. Both are equal because it is constrained at both the ends. It is constrained at both the ends. So जितनी deformation और change in length स्टील की होगी उतनी ही change in length आपकी किसकी होगी? एल्यूमिनियम की होगी. तो change in length हम अगर स्टील की निकालनी है तो इसका क्या होगा? P into L A into E, where P is this is PS. PS into L, this is equal to A into E, and PAL into L, because the length will remain same, length of the aluminium as well as the length of the steel, that will same, because it is fixed at both ends. तो लेंथ भी सेम होगी और चेंज इन लेंथ जो होगी वो भी इसमें सेम होगी, तो इसलिए मैं इन दोनों को L ले लेता हूं. दिस इज इक्वल टू A इंटू E स्टील एंड AE L, राइट? तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील, दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम. और जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उसमें सपोज करो आपको कहता है कि आप इसमें स्ट्रेस, स्टील में स्ट्रेस फाइंड आउट करें या एल्यूमिनियम में स्ट्रेस फाइंड आउट करें, तो बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस यू विल फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PS एंड PAL. इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप इंटरनल फोर्स इन स्टील और इंटरनल फोर्स इन एल्यूमिनियम फाइंड आउट कर लेंगे, और जिसकी आपने वैल्यू निकालनी होगी, अगर मुझे PS की वैल्यू निकालनी होगी तो स्ट्रेस अगर हमें स्ट्रेस इन द स्टील में निकालना होगा तो स्ट्रेस इज इक्वल टू PS डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द स्टील बार. तो न्यूमेरिकल में आपको एरिया दिया होगा स्टील का कितना है, एल्यूमिनियम का एरिया दिया होगा कितना है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्यूमिनियम का भी होगा आपके पास एंड स्टील का भी होगा, वो दिया होगा. अगर नहीं दिया है तो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील
and what is the Young modulus elasticity of the aluminium, as I have already told you here, right? So by putting these two values, you will calculate the value of the stress. तो अगर मैं स्टील की स्ट्रेस को कहता हूं कि स्टील की स्ट्रेस निकालो, तो ES जो होगा आपका स्ट्रेस इन स्टील क्या है? ES, दिस इज इक्वल टू PS into A, right? दिस इज द स्ट्रेस इन स्टील. तो अगर हमें स्ट्रेस इन उसमें निकालना है एल्यूमिनियम, तो क्या होगा? P नॉट PS, राइट? तो ये अगर एल्यूमिनियम में स्ट्रेस निकालना है एल्यूमिनियम, तो ये होगा PAL into A, ठीक, राइट? So this is the way you can calculate the questions, numericals. I think you understood the concept of the compound var. Okay, what is the compound var? Compound var क्या है? Compound var means when the two vars of the different materials are connected in parallel. That is called the compound var. इसमें दो कंडीशंस आपको याद रखनी है. इसमें पहली कंडीशन क्या होगी? बिकॉज इट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इट इज कनेक्टेड. सो जहां पे क्या होगा? फिक्स होगा. जब ये फिक्स होगी दोनों एंड्स के ऊपर, तो क्या होगा? जहां पे ये इसकी जो डिफॉर्मेशन होगी वो कंस्टेंट होगी. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज change in length of the steel that should be equal to the change in length of the aluminium, and this is the second compatibility equation. First equation तो आपको मिलेगी when you apply the tensile load here. तो क्या होगा? Because the bar is under equilibrium, तो इसमें क्या होगा? When you cut the bar from here, so 200 kilonewton, this is equal to PS plus PL. This is the one equation, statical equivalent equation. In the x direction, sigma Fx equal to 0. You will get this equation, and the second equation you will get while using the compatibility equation, and the condition is change in length of the steel or change in length of the one bar. This is equal to change in length of the other bar of the different material, because both these are the constraint at their ends. So by using these two equations, you can calculate the value of the stress in the steel, you will calculate the value of the stress in the aluminium, or any other parameter which is required to be known or calculated by using these two conditions, by using these two equations. So this is all about your compound var. Now we will take some very important numericals. I will just give the concept. I will give the concept of these numericals, and the concept of the numerical is given in such a way that any numerical problems regarding to this that you can calculate at your own level. तो जहां पे आपको बड़े अच्छे तरीके से इनके जो कंसेप्ट हैं इसको अंडरस्टैंड करें, तो पहले मैं इसका इसी का एक न्यूमेरिकल निकाल लेता हूं, एंड देन आई विल गो टू द अदर प्रॉब्लम्स, राइट? सो आई वांट टू ऐड वन मोर प्रॉब्लम पॉइंट हियर. इसमें आप नोट कर लीजिए. सो यू कैन say that when there is a compound var, it is always statically indeterminate. This is important point. I will write down here. So note कर लो. Note when there is a compound when there is a compound var, it is always statically indeterminate. So this is the important point. When there is a compound var, it is always statically indeterminate. So I think you have understood here. कंपाउंड बार का आपको पूरा कंसेप्ट समझा गया होगा कि कंपाउंड बार में हमें क्या होता है कि हमें एक इक्वेशन आपको मिलेगी, दैट इज सिग्मा fx इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टू अननोन्स देयर. एक इक्वेशन तो आपकी बन जाएगी
that is your equation is PS plus PAL, this is equal to 200. This is the one equation. So from here you have seen that you have to calculate the two unknowns, but you are having only one equation. And from this you can understand, you come to know that this is a statical indeterminate bar, right? So you can say when there is a compound bar, it is always statical indeterminate bar. And the second one, I told you, because you have to find out two unknowns, equation is one, so you will use the compatibility equation. और इसमें compatibility equation जो होगी वो क्या होगी? Because here the deformation of the bar is constrained at both ends, because the both ends of the bars are fixed, right? So you can say change in length of the bar of one material, that is equal to the change in length of the bar of another material. So that is the condition of the statical indeterminate bar, and this is the equation, you can say compatibility equation in this case. तो इस केस में compatibility equation बनेगी कि delta LS, because I am taking here steel, so change in length of the steel, this is equal to change in length of the aluminium. तो change in length of the steel and aluminium क्या होगा? ये आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए this is the equation like this, and from here we will get the one, by putting the values we will get the one equation this, second equation this, and by solving this we will calculate first PS or PL, and then we will calculate PS, and then we can find out the stress whatever, wherever you require that. You understand? Now we will come to the numerical of this only. Just see here. So this is your first problem which I have taken, that is a very simple one, only to make you understand the concept of the composite bar. This is a very simple problem, और जहाँ से मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता था जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, and then you can say that how we will just calculate the problem by using that concept, right? तो देखिए इसमें क्या है, सेम प्रॉब्लम है, ES is equal to 3EAL, right? Find the stress in the steel of composite bar made of, एक आपकी composite bar है, right? क्या है आपके पास? एक composite bar है made of aluminium and steel strips. composite bar है जो कि aluminium और steel strips से बनी हुई है. तो जहां पे मैं ये आपकी जैसे this is your composite bar, you can say, right? This is your composite bar like this, right? So it is made of, you can say, right? तो मैं इसको बोल देता हूं जी आपका स्टील है, right? And steel, and second one is aluminium. So this is your aluminium, right? So this is your bar. So this bar is, because composite bar है तो that should be fixed at both ends. तो ये दोनों ends के ऊपर इस तरीके से फिक्स होना चाहिए. It will fix like this, right? So it will fix like this at both ends. जहाँ पे भी ये फिक्स है तो इसी तरीके से ये जहाँ पे फिक्स होगा, it is fixed at both ends, right? तो ये बेसिकली आपको ये क्वेश्चन है, और यही ऐसा ही मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी समझाया था कि कंपोजिट बार क्या है. तो जहां पे आपने देखा कि दो स्ट्रिप्स हैं, ये दोनों स्ट्रिप्स को कनेक्टेड किया गया है. वन स्ट्रिप इज द स्टील मटेरियल एंड द अदर स्ट्रिप इज द एल्यूमिनियम मटेरियल, राइट? एंड दीस स्ट्रिप्स आर कनेक्टेड लाइक दिस. So composite bar, so this is your composite bar made of aluminium steel strip, each having the cross sectional area 300 mm square. तो दोनों का एरिया है वो क्या बराबर है 3 mm स्क्वायर, और इसका भी आपका एरिया जो है वो गिवन है, दैट इज 3 mm स्क्वायर, राइट? एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्चुअल लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन. तो इसके ऊपर एक्चुअल लोड लगा है, जहां पे ये लोड आपका एक्चुअल लोड है, दिस इज 12 किलो न्यूटन, एंड
this is your 12 किलो न्यूटन, राइट। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द स्टील ऑफ द कंपोजिट बार made out of this that each having a cross section subject to find the stress in the steel। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टील में स्ट्रेस कितना है, राइट। तो स्ट्रेस मींस यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा एस, राइट। सिग्मा एस एक्चुअली आई एम डिनोटिंग हियर फॉर द स्टील। तो सिग्मा एस आपने कैलकुलेट करना है, एंड वन कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज गिवन, दैट इज द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, दिस इज 3 times मोर देन द यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये जो यंग मॉडुलस स्टील का है वो एल्यूमिनियम के यंग मॉडुलस से 3 टाइम ज्यादा है। सो दिस कंडीशन इज आल्सो गिवन, दैट इज ES is equal to 3AL। so this is your problem, this is given, right। तो ये चीजें हमें दी गई हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू विल टेक द सेक्शन हियर, सपोज इफ यू विल टेक द सेक्शन एट दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर सेक्शन लेते हैं और उसको कट करते हैं, यहां से सपोज आपको कट करते हैं, तो जो हमें पहली इक्वेशन जो मिलेगी, राइट, जैसे आपने इसको कट किया यहां से, तो जो जैसे मैंने आपको उसका मैं बताया था कि इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन होगी स्टैटिकली इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होगी, जब आपने इसको कट किया यहां से, राइट, ठीक है ना। तो जब आपने जैसे कट किया, ये आपकी होगी, ये एस में लिख लेता हूं, ये आपका AL हो गया, राइट। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका 12 किलो न्यूटन एक्शन लोड आपने लगाया। तो जहां पे इंटरनल स्ट्रेस जो थी स्टील में, ये आपकी होगी PS एंड ये होगी आपकी PAL, राइट। सो व्हाट इज द स्टैटिकली, जो आपकी स्टैटिकल इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन इज सिग्मा FX इक्वल टू 0। वैसे ही करना है, ये मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूं, थोड़ा डिटेल में, अदरवाइज इतना बताने की जरूरत नहीं थी। ये जैसे मैंने उसको ड्राइव किया था, इसको दोबारा आपको मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन वैसे चलेगा। सिग्मा FX इक्वल टू 0, राइट। तो क्या होगा इसमें, पहली इक्वेशन होगी PS प्लस PAL, दिस इज सिग्मा FX इक्वल टू 0। तो दिस इज स्टैटिकली इक्विवेलेंट PS अपॉन PAL, दिस इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें स्टैटिकली ये एक इक्वेशन मिली, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, देयर आर 2 अननोन्स। इफ आई हैव टू कैलकुलेट PS और इफ आई हैव टू कैलकुलेट PL, व्हाट वी हैव टू डू, आई जस्ट नीड 2 इक्वेशंस। हमें क्या चाहिए, जहां पे 2 इक्वेशंस चाहिए, बट हमारे पास क्योंकि अननोन 2 है तो 2 इक्वेशंस चाहिए, हमारे पास सिर्फ स्टैटिकल इक्विवेलेंट इक्वेशन एक है। तो मैंने क्या बताया था कि क्या है, दिस इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बार। ये स्टैटिकल इनडिटरमिनेट बार की कंडीशन है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। सो यू कैन से टेक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी इसमें, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन व्हाट इज दैट इज, मैंने आपको बताया था, क्योंकि this composite bar you can say this is fixed at both ends, right। ये दोनों एंड से फिक्स है, so there is a constraint in the deformation, or you can say that is there is a constraint in the change in the length। तो जितनी लेंथ स्टील की चेंज होगी
उतनी ही लेंथ आपकी एल्यूमिनियम की चेंज होगी। एंड दिस इज योर सेकंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो क्या करेंगे इसमें, डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल एल्यूमिनियम, राइट। सो ये हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी, राइट। अब इसमें आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू एंड यू विल गेट दिस। अच्छा, तो दिस इज योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दें कि क्या होगा, डेल्टा एस इसमें आ जाएगा ये पी एस मीन्स इंटरनल फोर्स इन स्टील, राइट, पी एस इंटू एल अपॉन एरिया भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, जब पुट कर दीजिए वैल्यू अपॉन एरिया सीधा दिया है 300 इंटू ई। तो इसमें देखिए स्टील का ई इन टर्म्स ऑफ इसमें ले लेते हैं हम 3al, ES इन स्टील किसके बराबर है, ये दिस इज गिवन 3al, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे 3 आर्टिकल से, अगर E इसका है तो मीन्स इसका 3EAL, सो दिस इज इक्वल टू, अब एल्यूमिनियम का कर ले, इंटरनल फोर्स क्या है यहां पे PAL into L, because length will remain same. Suppose if I say the length of its L, जो इसकी लेंथ होगी स्टील स्ट्रिप की, उसकी एल्यूमिनियम की भी उतनी लेंथ होगी, बिकॉज दीज आर फिक्स्ड एट बोथ एंड, है ना। ओरिजिनल लेंथ भी सेम होगी तो चेंज इन लेंथ भी सेम होगी। तो मैं इसकी लेंथ को, सपोज मैंने इसकी लेंथ को आपको L ले लिया, राइट। सो लेंथ ऑफ दिस ओरिजिनल लेंथ जो थी वो क्या थी, L थी दोनों की, राइट। लिखना नहीं चाहिए दोनों का क्योंकि ये दिस इज अंडरस्टूड, राइट। इफ द लेंथ ऑफ द स्टील इज L, सो यू कैन से द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज L। तो मैंने L ले लिया, PAL। आप यहां पर भी आपका 300 इंटू क्या आएगा, EAL, राइट। तो L और L कैंसल, 300 कैंसल, EAL कैंसल, राइट। So PS is equal to 3PAL, right? PS is equal to 3PAL. तो जहां पे लिख लीजिए PS कितना आया, 3PAL। तो यहां से इसको मिटा देता हूं मैं। So PS is equal to 3PAL. Is there any problem? So this is your second equation. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, PS upon PAL, ना, दिस इज इक्वल टू 12, राइट। तो अगर मैं किलो न्यूटन में लिख लेते हैं, किलो न्यूटन, PS की जगह 3PL, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इसकी जगह मैं ये पुट कर दूं, PS की जगह 3PL, this is your 3PAL plus PAL is equal to 12. Therefore, PAL, this is equal to 4, means 3 kilonewton. You understand this? तो PAL की वैल्यू हमें मिल गई, बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए किसकी, PS की। इसलिए बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द स्टील, हमें एल्यूमिनियम का स्ट्रेस नहीं उसने पूछा है, स्टील में स्ट्रेस निकालना है। तो PAL की जो वैल्यू है जहां से आपने कैलकुलेट की, ये आप क्या करें, ये आप फर्स्ट इक्वेशन में, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट कर दें, राइट। तो PAL क्या है आपका 3 किलो न्यूटन, तो therefore PS is equal to 9 किलो न्यूटन। समझ आ गया क्या?
PS कितना आ गया 9 किलो न्यूटन, राइट। तो अब स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A, सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन A, सो दैट इज योर स्ट्रेस। हमें किसमें सिग्मा निकालना है, स्टील में, तो देयरफॉर सिग्मा S इज इक्वल टू PS अपॉन A, तो PS अभी आपने निकाला 9 इंटू 10⁻3, एरिया आपका 300 है, राइट। तो इसमें कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना है, सो 9 इंटू So this is 30 megapascal. So this is 30 megapascal and this is 30 megapascal and this is your answer. This is your answer, right? So you understand this problem, right? So this is 30 megapascal and this is your answer. So this is the way how you will calculate the problem, how you will get a solution of the problem of the composite bar. ये एक तरीका है, इसमें आप जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसमें कंसेप्ट क्या होगा, एक आपको स्टैटिकली इक्विवेलेंट इक्वेशन मिलेगी सिग्मा fx इक्वल टू 0, राइट। उस वो आप लगाइए, दिस इज योर वन इक्वेशन बट देयर आर ऑलवेज टू अननोन्स देयर। और सेकंड इक्वेशन जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम यूज करेंगे, इसमें जो आपने याद रखना है वो क्या है, बिकॉज इट इज स्टेन एट बोथ एंड्स, or you can say the formation is stained at both ends because the composite bar is fixed at both ends. So change in length of one strip, you can say change in length of the one strip of the bar, this is equal to the change in length of the other strip of the bar. This is your second condition. So दो इक्वेशंस आपके पास होंगी, दो आपने अननोन निकालने हैं और उसी में ही आपको फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेस कितनी है, किसी में लोड पूछा होगा, इंटरनल फोर्स उसमें कितनी है, क्या है, एरिया नहीं दिया होगा, तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट। तो लाइकवाइज दिस यू विल गेट द प्रॉब्लम्स एंड इफ यू नो द कंसेप्ट, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कंपोजिट बार, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मैं एक प्रॉब्लम दूंगा, उसमें एक कुछ खास कंसेप्ट है, उसको आप समझने की कोशिश करें, वो क्या है देखिए आप। Just wait for the next problem.